payables are created या accounts payable are created or creditors are created when we purchase anything on credit. If we are making cash purchases, no creditor will be created, no accounts payable will be created. But if we are making credit purchase, we will create accounts payable in our books, right? So जो accounts payable होते हैं, ये अकाउंट्स पेबल क्रिएट होते हैं जब आप क्रेडिट परचेस करते हो, व्हेन वी आर मेकिंग क्रेडिट परचेसेस. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है, जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर डेटर्स टर्नओवर या इन्वेंट्री टर्नओवर ज़्यादा है, इफ़ डेटर्स टर्नओवर इज़ हायर एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर इज़ हायर ऑफ अ फर्म एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री, तो ये एफिशिएंसी की साइन है कि इनएफिशिएंसी की साइन है? व्हाट यू विल say that firm is efficient or inefficient? If any firm's debtor and inventory turnover ratio is higher, the firm is efficient or inefficient? It is good to have a higher debtor turnover ratio. Efficient. It is good to have a higher debtor turnover ratio. It is good to have a higher inventory turnover ratio. But in this case, accounts payable ratio, it is not good to have a higher payable ratio, payable turnover ratio. Why? Because to calculate average payable turnover ratio, what we do, how do we calculate this ratio? We calculate payables turnover as TOS turnover. We take annual credit purchase. If credit purchase is not given, we'll take the purchase, total purchase. We'll assume that total purchase is equivalent to credit purchase, divided by average payables. How we'll get average payables? We'll have a balance sheet of last year in which we'll have a balance, ending balance of payables. It will become our beginning balance of payable of this year. Then we'll have balance sheet of this year in which we'll again have a closing balance of payables. That opening and closing को हम ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, we'll get the average balance of payables. वो एवरेज बैलेंस से हम क्या करेंगे? एनुअल क्रेडिट परचेज को डिवाइड करेंगे, विल गेट पेबल्स रेशो. सपोज यू मेक अ क्रेडिट परचेज इन अ ईयर, you make a credit purchase of say 60,000 and you have average payables of say 20,000, so your payables turnover is 3 times, right? Now suppose let's compare this data with industry's average. If we take industry's average, the industry's the average annual credit purchase is of 80,000 and the average accounts payable is say 16,000. So industry's payable turnover is 5 times. So firm's payable turnover is 3 times and industry's payable turnover is 5 times. So industry's payable turnover is higher than the firm's payable turnover. So which is more efficient? Industry is using its payable more efficiently or the firm is using its payable more efficiently? Try to, what you make out of these two ratios, understand this. How much annual purchases we are making? We are making annual purchase of 60,000 and how much outstanding payables we have? 20,000, right? Here industry is making an annual purchase of 80,000 but it is making higher, its annual purchase is higher than that of the firm but its payable is lower than that of the firm. इसका मतलब पता है क्या होता है? आपको लगेगा कि इंडस्ट्री ज़्यादा एफिशिएंट है बट इट इज़ नॉट. दिस फर्म इज़ मोर एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग इट्स पेबल्स. पेबल टर्नओवर जितना कम होगा उसका मतलब ये है कि आपके एवरेज पेबल उतने ज़्यादा हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एवरेज पेबल रेशो, पेबल टर्नओवर रेशो जितना कम होगा इसका मतलब आपके जो ये पेबल्स हैं उतने ज़्यादा हैं. डिनोमिनेटर इज़ बिगर. इसका मतलब यू आर होल्डिंग बैक द मनी ऑफ योर क्रेडिटर्स, यू आर नॉट पेइंग देम अर्ली. आप उनको जल्दी नहीं दे रहे हो पैसा. अंडरस्टैंड दिस. अगर आप मान लो अपने पेबल्स को जल्दी जल्दी पैसा दे देते हो, आप परचेज करते हो और बहुत फ्रीक्वेंटली उनको पैसा दे देते हो,
इमीडिएटली उनको पेमेंट कर देते हो, बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं करते। तो आपके जो एवरेज पेबल्स हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, और जब आपके एवरेज पेबल्स कम हो जाएंगे तो आपका जो रेशो ज़्यादा हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो अच्छी बात है उनको पे करना, नहीं, पेइंग देम अर्ली इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आप उनको जल्दी पे कर दोगे तो यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द मनी ऑफर्ड, या यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द क्रेडिट ऑफर्ड बाय देम। वो आपको क्रेडिट ऑफर कर रहे हैं तो उसको यूटिलाइज करो ना, पे देम स्लोली। आप किसी से क्रेडिट पे गुड्स लेते हो तो इट्स गुड टू पे देम अर्ली और इट्स गुड टू पे देम लेट। सर लेट पे करेंगे तो इससे हमारी गुडविल नहीं ख़राब हो जाएगी क्या, कि यार ये तो माल उधार पे ले लेता है, गुड्स ले लेता है एंड देन दे डोंट पे। हमने वो क्या, ये शॉप्स पे वो लिखा रहता ना, एक शॉप पे मैंने पढ़ा था, हमने उनकी याद में ज़िंदगी गुजार दी पर वो नहीं आए जिन्हें उधार दी। ठीक है, तो हमने उधार दिया तो उसके बाद वो पर्सन कभी आया ही नहीं। ठीक है, इतना भी डिले नहीं करना चाहिए कि दैट इट एम्पर्स आवर गुडविल, बट अगर जितना हम उसको स्ट्रेच कर पाएँ उतना अच्छा है। अगर फर्म ज़्यादा पेबल्स रखती है एंड इफ़ फर्म पेज इट्स पेबल्स स्लोली, इसका मतलब फर्म इज़ यूटिलाइजिंग देयर मनी, तो फर्म को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा, राइट। तो इसलिए कम पेबल्स टर्नओवर रेशो कम होना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा होना, राइट। जैसे डेटर्स टर्नओवर ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब हम जल्दी कलेक्ट कर रहे हैं कैश को। पेबल्स टर्नओवर कम होगा मतलब हम कम, मतलब वी आर नॉट पेइंग आवर क्रेडिटर्स क्विकली, वी आर पेइंग आवर क्रेडिटर्स स्लोली। तो स्लो पे करना अच्छा है, इट मीन्स दैट वी आर एबल टू यूटिलाइज देयर मनी, वी आर एबल टू यूटिलाइज द क्रेडिट टर्म्स ऑफर्ड बाय देम, राइट। तो ये जो टर्नओवर रेशो ये कम होना चाहिए, इसके इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा कम होगा तो इससे देखो, अगर एज एन एनालिस्ट अगर किसी कंपनी का ये पेबल टर्नओवर बहुत कम है, इसका मतलब वो बहुत स्लोली पे करी अपने क्रेडिटर्स को, तो इसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। या तो फर्म यूटिलाइज कर रही है क्रेडिटर्स के क्रेडिट टर्म्स को, उनके दिए हुए क्रेडिट को, या दूसरा फर्म में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फर्म इज़ नॉट एबल टू पे इट्स क्रेडिटर्स। तो इतने हाई क्रेडिटर्स क्यों? इंडस्ट्री तो 16,000 के क्रेडिटर्स रखती है, फर्म 20,000 के क्रेडिटर्स रखती है। डिस्पाइट फर्म इज बाइंग लेसर इन्वेंट्री एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री, स्टिल फर्म हैज़ हायर क्रेडिटर्स। So is this the reason? What is the reason behind this? Is it the liquidity problem? क्या कंपनी के पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ विच कंपनी इज नॉट एबल टू पे इट्स क्रेडिटर? तो ये देखना पड़ेगा एक एनालिस्ट को। अच्छा साइन ये है कि कंपनी इज यूटिलाइजिंग द मनी। अगर कंपनी के पास लिक्विडिटी है, अच्छा, तो उसको चेक करने के लिए सर क्या करेंगे? उसको चेक करने के लिए उसको करंट रेशो के साथ कंपेयर, करंट रेशो के साथ स्टडी करो ना, ये भी स्टडी करो, करंट रेशो भी स्टडी करो। अगर कंपनी का करंट रेशो साउंड है, कंपनी का कैश रेशो साउंड है, अभी आगे हम लिक्विडिटी रेशोज पढ़ेंगे, और साथ ही साथ कंपनी का ये जो पेबल्स टर्नओवर ये कम है, इसका मतलब इंटेंशनली कंपनी इज नॉट पेइंग टू इट्स क्रेडिटर, कंपनी इज यूटिलाइजिंग देयर मनी, द क्रेडिट ऑफर्ड बाय देम, राइट। अगर कंपनी का करंट रेशो भी कम होते जा रहा है, कैश रेशो भी कम होते जा रहा है, और ये जो टर्नओवर है ये भी कम होते जा रहा है, इट मीन्स देयर इज लिक्विडिटी क्राइसिस इन द कंपनी। कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्राइसिस है, कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स और मनी, दैट्स व्हाई कंपनी इज नॉट पेइंग टू इट्स क्रेडिटर्स। बोलो, क्लियर हुआ? तो दोनों बातें हो सकती हैं। पेबल टर्नओवर कम है, इसका मतलब कंपनी जितना भी परचेज करती है क्रेडिट पे, उसका बहुत सारा अमाउंट कंपनी आउटस्टैंडिंग रखती है, कंपनी इज नॉट पेइंग। देखो ये जो 20,000 है, 20,000 बता रहा है आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर, दीज क्रेडिटर्स आर आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं। तो 60,000 का तो परचेज करते हो साल भर में, और 20,000 के क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग रखते हो। तो जितना भी आप एनुअली परचेज करते हो, ऑन एन एवरेज उसका 1/3, 33% तो आप आउटस्टैंडिंग रखते हो। यू डोंट पे टू योर पेबल्स, योर क्रेडिटर्स, ठीक है। तो इतने आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर दो कारण से हो रहा है, या तो कंपनी उनके द्वारा दिए गए फंड्स को या उनके द्वारा दिए गए क्रेडिट टर्म्स को यूटिलाइज कर रही है प्रॉपरली, एक, या कंपनी के पास लिक्विडिटी क्राइसिस है, कंपनी के पास फंड्स का क्राइसिस है, दैट्स व्हाई कंपनी इज नॉट एबल टू पे देम। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द डिले? तो अगर कंपनी के डिले के पीछे का रीज़न क्या है, यू हैव टू सी दैट। तो करंट रेशो, लिक्विडिटी रेशोज़ के साथ उसको स्टडी करो। इफ़ लिक्विडिटी रेशोज़ आर साउंड, then there is no need to worry about the liquidity of the company, but lower payables turnover along with lower current ratio or cash ratio, it raises some doubts in the minds of an analyst कि कंपनी में liquidity crisis हो सकती है, राइट। इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। अच्छा, इससे एक और चीज़ आती है, नंबर ऑफ डेज ऑफ पेबल्स।
जो हम हमेशा निकालते हैं. नंबर ऑफ डेज ऑफ पेबल्स किससे निकलेगा? हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट? नंबर ऑफ डेज ऑफ पेबल्स is equal to number of days in a year. ये वीक्स और मंथ्स में भी निकल सकता है. डिवाइडेड बाय पेबल्स टर्नओवर. See, if payables turnover is 3 times, if we take 360 days, payables turnover is 3, it means days of payable is 120 days. You know what does that mean? It means that if we purchase, understand this, if we purchase any goods on credit today, we'll make the payment to our creditors after 120 days. क्योंकि 120 डे की साइकिल है ना. डेज ऑफ पेबल्स आउटस्टैंडिंग, ये है डेज ऑफ पेबल्स आउटस्टैंडिंग. इतने दिन के पेबल्स आउटस्टैंडिंग रहते हैं. मतलब इफ़ यू आर सी व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली हियर, इफ़ यू आर बाइंग द गुड्स टुडे 1st of January, if you are buying the goods on 1st of January, you will pay your creditors after 120 days. 120 days मतलब जनवरी पूरा गया, फिर 1st Feb को भी आपने कुछ खरीदा, फिर 1st March को यू परचेज समथिंग, फिर 1st April को यू परचेज समथिंग, फिर 1st May को यू परचेज समथिंग. So the goods you purchased on 1st of January, these goods will be paid on 1st of May after 120 days. And the goods you purchased on 1st of February, it will be paid on 1st of June after 120 days. So for 120 days you purchase the goods here. आपने goods को यहीं खरीद लिया 1st of June को. Suppose you are a retailer, suppose you are a reseller, you purchase the goods on 1st of January and you resold the goods on February or March or April, but you have to pay to your supplier not before 1st of May. You can sell the goods before 1st of May and get the cash, but you don't have to pay the cash before 1st of May, or you are holding the cash back till 1st of May. तो आप कितना यूज़ कर रहे हो उसके फंड्स को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑन द अदर हैंड, अगर ये इंडस्ट्री का 5 टाइम्स है, ये जो हमने कैलकुलेट किया था, अगर इंडस्ट्री का डेज ऑफ पेबल्स आउटस्टैंडिंग निकालेंगे तो 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 72 डेज ही आएगा. तो द इंडस्ट्री पेज आफ्टर 72 डेज. तो 1st of January, 1st of February, 1st of March, 1st of April, 1st of May and 1st of June. So if industry is buying any goods on 1st of January, it will keep that if any goods on credit are purchased on 1st of January, the credit purchase will be outstanding only for 72 days. After 72 days it will be paid back. 72 days मतलब जनवरी का पूरा महीना आ गया, फरवरी का पूरा महीना हो गया एंड 12 डेज ऑफ मार्च. ठीक है, तो 1st मार्च को तो नहीं करेंगे, 1st अप्रैल और मार्च के बीच में, मतलब 12 डेज ऑफ मार्च. तो यहाँ 12th मार्च को हम पे कर देंगे. 12th मार्च, तो ये 12th मार्च को पे कर देंगे. ये देखो, ये मई को पे कर रहा है और ये मार्च में पे कर रहा है. राइट, तो ये तो अच्छा है. किसी से गुड्स लिए क्रेडिट पे, रॉ मटेरियल लिया या कुछ भी लिया, फिनिश गुड लिया, इंटरमीडिएट गुड्स लिए, एंड वी हैव टू पे आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. तो इट्स गुड दैट वी आर यूजिंग देयर मनी. राइट, ठीक है. तो और ज़्यादा लंबे समय के लिए आउटस्टैंडिंग होना अच्छा है. फाइनेंशियली इट्स गुड फॉर अस, बट ये रेपुटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ख़राब हो सकता है इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच वी आर नॉट पेइंग देम ऑन टाइम. ठीक है, तो ये पेबल्स टर्नओवर हायर है और लोअर है तो क्या होगा? इफ़ पेबल्स टर्नओवर हायर, इट कुड इंडिकेट दैट कंपनी इज नॉट मेकिंग फुल यूज ऑफ अवेलेबल क्रेडिट फैसिलिटीज. सी, हायर पेबल्स टर्नओवर इज नॉट गुड. ये जो इंडस्ट्री का था, इंडस्ट्री का 5 टाइम्स था और हमने जो कंपनी का एग्जांपल लिया उसका 3 टाइम्स था. तो इंडस्ट्री इज़ नॉट मेकिंग फुल यूज़ ऑफ अवेलेबल क्रेडिट फैसिलिटीज़. अरे क्रेडिट फैसिलिटी है तो उसको यूज़ करो ना, पे स्लोली. वाई आर यू इन अ हरी टू पे टू योर क्रेडिटर्स? पे स्लोली, जितना हो सके उसको स्ट्रेच करो. राइट, इट कुड रिजल्ट फ्रॉम कंपनीज टेकिंग एडवांटेज ऑफ. हाँ, ये हो सकता है, इसका एक इंटरप्रिटेशन ये है कि ये आपको चेक करना पड़ेगा. हो सकता है कंपनीज पेइंग अर्ली टू टेक एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट्स. कई बार ऐसा होता है ना, कैश डिस्काउंट देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देते हैं इफ़ यू पे अर्ली. वो पढ़ा है कि नहीं,
10, कभी एफ में पढ़ा 2/10 नेट 30, 2/10 नेट 30, ये एक पेमेंट टर्म्स होती है। यहाँ अपन तो नहीं पढ़ेंगे, CFA में अपन को नहीं आएगा। 2/10 नेट 30 इसका मतलब होता है क्या होता है, इफ़ यू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद इन 10 डेज, ये 10 डेज यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 2%, एल्स यू पे द एंटायर अमाउंट विदाउट डिस्काउंट इन 30 डेज। तो 2/10 नेट 30, तो 10 डेज में पे कर दो, 2% का डिस्काउंट ले लो। अगर 10 डेज में पे नहीं करते तो 30 डेज में पे कर दो, फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मतलब डिस्काउंट चाहिए तो पे विद इन 10 डेज एंड टेक डिस्काउंट ऑफ 2%, और पे विद इन 30 डेज विदाउट डिस्काउंट। तो एनी कंपनी विशिंग या विलिंग टू टेक दैट डिस्काउंट ऑफ 2% विल पे विद इन 10 डेज एंड द कंपनी विल हैव अ लार्जर और हायर टर्नओवर रेशो, स्मॉल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग पेबल्स। तो ये देखना पड़ेगा कि कंपनी जल्दी पे करके डिस्काउंट तो नहीं ले रही है, राइट? ठीक है। कैसे मालूम पड़ेगा कंपनी ने डिस्काउंट लिया है या नहीं लिया? कैश फ्लो में जाके देख लो, या कंपनी के वो जो परचेजेस हैं उसमें जाके देख लो कि कंपनी को कोई डिस्काउंट मिला है, राइट? एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री किस प्राइस पे परचेज करती है और कंपनी किस प्राइस पे परचेज करती है। ठीक है। बट अगर डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब कंपनी यूटिलाइज नहीं कर रही है उसको। ठीक है। लोअर अगर है, जैसा कि कंपनी का था 3 का ही था, कंपनी का, इंडस्ट्री का 5 का था, लोअर है, तो इसका मतलब इट कुड इंडिकेट दैट कंपनी फेसिंग ट्रबल मेकिंग पेमेंट ऑन टाइम। ये इट कुड है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं ऐसा होता है, बट ये भी एक डाउट है। तो जब भी आप देखो कि उसका टर्नओवर क्या है, कम है, पेबल्स टर्नओवर कम है, तो मन में एक डाउट आना चाहिए। एक बात अच्छी चीज़ ये भी आना चाहिए, इट कुड ऑल्सो इंडिकेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लीनियंट सप्लाई टर्म्स। तो सप्लायर लीनियंट टर्म्स में गुड सप्लाई कर रहा है, हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम उसको आराम से पे कर रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव साइन है, वी आर एक्सप्लॉइटिंग द लीनियंट टर्म्स। ये नेगेटिव साइन है, कंपनी इज फेसिंग ट्रबल इन मेकिंग द पेमेंट्स ऑन टाइम। तो दोनों को आप चेक कर लो। ठीक है। हायर लिक्विडिटी रही है, तो कोई लिक्विडिटी रेशोज, ये कैसे मालूम करेंगे सर कंपनी में ट्रबल है कि नहीं? कंबाइन दिस रेशो विद द लिक्विडिटी रेशोज। लिक्विडिटी रेशो के साथ ब्लेंड कर दो ना इनको, साथ में लिक्विडिटी रेशो भी स्टडी कर लो। अभी आगे पढ़ेंगे हम लिक्विडिटी रेशो। हायर लिक्विडिटी रेशो अलॉन्ग विद लोअर पेबल्स टर्नओवर इंडिकेट्स दैट कंपनी एक्सप्लॉइटिंग लीनियंट सप्लाई टर्म्स। यहाँ से ये जो पहला पॉइंट था, इससे हमको एक डाउट ये हुआ कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन तो ख़राब नहीं है। तो यार लिक्विडिटी पोजीशन ख़राब तो नहीं है, इसमें डाउट हुआ तो सिंपल लिक्विडिटी टेस्ट कर लो ना उसका, लिक्विडिटी रेशो स्टडी कर दो, दैट्स इट, राइट? लिक्विडिटी रेशो बता देंगे राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। वो लिक्विडिटी रेशो खुद बताएंगे कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। ठीक है।